જય ગિરનારી મિત્રો, ફરીથી ભ્રમણ કરતાં કરતાં એક ખેટલા બાપાના મંદિરે અને એક સંતના દર્શન કરવા માટે આજે આપણે ફરીથી મળ્યા છીએ. આ જગ્યાનું લોકેશન હું પાકું નહીં કહી શકું. અમરેલીનો છેડો છે. અહીંયાથી પછી આજે રાજકોટ જિલ્લો શરૂ થાય છે. અમરેલીની બોર્ડર કુકાઓ ફળિયા તાલુકો છે, એમાં આવેલું છે આ બસિયા પરિવારના ખેટલા દાદાનું મંદિર. અને અહીંયા છે ખૂબ જ સત્સંગી મહાત્મા કાલિદાસ બાપુ, જેના આપણે આ વિડીયોમાં દર્શન કરવાના છીએ અને સાથે સાથે એમની સાથે ખૂબ જ સુંદર સત્સંગ કરવાના છીએ. તો ચાલો જઈએ, દર્શન કરીએ આ ખેટલા બાપાના મંદિર અને કાલિદાસ બાપુના આશ્રમ અને એમના દર્શન કરવા. આ રસ્તો છે, આપણે ખડખડથી ટૂંકમાં આપણે આવ્યા છીએ રણુજા ધામવાળા રસ્તેથી. અને આ છે એ બસિયા પરિવારના ખેટલા બાપાનું મંદિર. અહીંયા ખૂબ જ સુંદર આશ્રમ છે, ખેટલા બાપાનું મંદિર છે. અહીંયા કાલિદાસ બાપુ નામના મહાત્મા અહીંયા બિરાજમાન છે. એમનો આ કક્ષ, એમનું આ સ્થાન સાથે ખૂબ જ પ્રકૃતિના ખોળામાં એક ખૂબ સુંદર જગ્યા. અને આ જગ્યા ઉપર પણ આપણા મિત્ર શ્રી સતીશગીરી બાપુ આપણે લાવ્યા છે. અને હવે આપણે અંદર ખેટલા બાપાના દર્શન કરાવું અને પછી આપણે અહીંયા જે મહાત્મા છે કાલિદાસ બાપુ, એમના હું તમને દર્શન કરાવું. આ મંદિર જો કે હમણાં જ જીર્ણોદ્ધાર કર્યું છે. સ્થાપના થઈ છે 1474માં, જ્યારે જીર્ણોદ્ધાર છે 2023, એટલે કે વર્ષ દિવસના સમયગાળામાં આ મંદિર બનાવી. ખૂબ જ સુંદર મંદિર, ખેટલા બાપાનું સ્થાન સાથે બીજા એક બે દેવી દેવતાના સ્થાન, જેના તમે દર્શન કરી રહ્યા છો. ખૂબ જ સુંદર મંદિરની વ્યવસ્થા છે, મંદિરના દર્શન છે. ગણપતિજીની ફોટારૂપી હનુમાનજીની મૂર્તિ પાછળ, ખેટલા બાપાનું ફોટારૂપી દર્શન. હવે આપણે દર્શન કરીએ ખેટલા બાપાના અને હવે સીધા આપણે જઈએ અહીંયાના જે મહાત્મા છે કાલિદાસ બાપુ, એમની સાથે આ થોડોક દિવ્ય સત્સંગ કરીએ. બાપુ ચાલો. સીતારામ. तो શું बताऊं, તમને જે આનંદ આવે બાપુ, આપને જે સત્સંગમાં આનંદ આવે. हमारो जो है खारो होवे, हमारा विषय બહુ ખારો. દવા કડવી જોઈએ, સંસાર જો છે ને બહુ મીઠો છે. દવા કડવી જોઈએ શરીર. जितना मानस मीठो बोलतो હોય ને, अंदर से सारो नहीं હોય. કોક તમે કાંઈ ચીજ માંગતો મીઠો ભરતો લઈ જાવે, પછી દેવા આવે નહીં. 10 બાર પાછળ ફરે, લેકિન કાઢ કે દેવે નહીં. પોતે ને સામાન હોય ને તો તમે માંગવાનો તો ભિખારી બન કે માંગવા જાઓ. માંગ કે તો લે જાઓ, પછી આપવા નહીં આવે. ભિખારી થઈ કે જા કરકે માંગવા જાઓ. 10 બાર જાઓ કે અમે આપો, પછી કઈ આમ દેવે यहाँ टन देवे यहाँ टन नहीं दे, फरती रहे. समझिए, संसार जो है असत्य से सत्य नहीं. असत्य में तो असत्य कहाँ से होता है? संसार का निर्माण जो हुआ है ये पंच भौतिक शरीर से हुआ है. इसमें मन जो घेरायल है, मन से घेरा. अमुक व्यक्ति मन के ऊपर हेलतो. मन તમે સોયા हो तो कहाँ से कहाँ फरता हो, है? शरीर पड़ा हो और मन फरता हो. यदि मन જે રીતે ફરતા हो, ઉપડે એ રીતે હલે તો હલ नहीं सके मानस. समझिए, इसलिए कोई किसी का है नहीं, कोई भी किसी का नहीं. ये मन अपने को नहीं देखता. मन जिस मकान में रहता, जिस शरीर रूपी मकान में रहता है, उसको भी नहीं ध्यान देता. मन कहाँ कहाँ चला जाता. शरीर जीर्ण हो रहा, ऊपर नहीं सकता, थाक लग रहा हो, लेकिन मन तो कहता है यहाँ होलो यहाँ होलो, પછી દુખાવા થાય. तो मन और शरीर दोनों भेगा नहीं चलता, क्योंकि मन सदा एक जैसा रहता और शरीर जीर्ण होती चली जाती है. समझिए, तो दोनों का मेल कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मन शरीर को छोड़ने के बाद 10 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां को लेकर के दूसरा माने बीजा शरीर में चला जाता. तो बीजा शरीर में जाएगा तो उसकी जो भावना बनी होती, जो वासना बनी होती है, जो धारणा बनी होती है, वो उस शरीर में जागृत होती है. वहाँ वैसा उसके कर्म होते. जैसे ज्योतिष में हमने देखा है, ज्योतिष में कौन से वर्ण से है किसका, किस जोनी कौन सी बनती है, तो जिस जोनी बनती, जिस जोनी से आया उसका स्वभाव मिलता है. किसी दीकरा या दीकरी का नाम रखेंगे
तो किस चरण में हुआ है, क्या चरण किस नक्षत्र के। नक्षत्र में। अब एक राशि 2.25 नक्षत्र का भोग करती है, 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। नक्षत्र में 4 चरण। तो एक राशि में 3 प्रकार के 3 स्वभाव हो सकते हैं, क्योंकि 3 नक्षत्र हैं तो तीनों नक्षत्र के गुण धर्म अलग हो जाएंगे और राशि एक ही बन रही है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि एक ही राशि बनती है तो इनके अलग अलग कर्म कैसे हैं, हैं? राशि तो एक ही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इनमें चरण से भेद है। चरण में भेद। दूसरी बात, पुकार के नाम अलग होते, राशि का नाम अलग होता। राशि ये होता है का नाम जो होता है कि जिस नक्षत्र के चरण में जन्म लेता है उसमें रखेंगे तो उसके लक्षण उसके ऊपर पूरा घटेंगे, और पुकार का नाम कोई भी रख देंगे तो उसका लक्षण घटता नहीं है। पुकार का नाम। हमारे कवियों ने चोखा कह दी दोहते, किया जग मीत न देखो कोई, संसार में किसी व्यक्ति को मित्र नहीं देखा, सकल जगत अपने स्वार्थ, पूरो जगत પોતાના સ્વાર્થ। सभी अपने स्वार्थ माटे से, दुख में संग न होई, दुख में कोई साथ नहीं देता। तुम्हारा बना हो तो 10 व्यक्ति पाछा पड़ता होगा, तुम्हारे बगड़ जानो तो पोते आवतो होनो तो फर जावे, बीजे रास्ते नहीं जावे। तुम्हारे पास रोकड़ो से ना 10 मित्र मिले, काई से नहीं ना तो तमे जाता हो तो आगड़ बही जावे। उसमें क्या है, आगे लिखा है, दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन सो लागे। दारा माने घरना, दारा मीत और मित्र, पूत माने दीकरा, दारा मीत पूत संबंधी, जितने संबंध जोड़ रखा है। सगरे धन सो लागे, धर के पीछे बदा पड़ा से, बापूजी ने पास से तो दीकरो पाछड़ फरता होए, मानस पास रोकड़ो होए ने कमाई काई जोए तो एक नहीं 4 लगन थी जाए। रोकड़ो हो ना तो 10 व्यक्ति आगड़ से आके मित्रता जोए, हाथ पकड़वाने उभा रहे। તમારે પાસ કાંઈ નહીં છે તો કોઈ હોય નહીં પાસ, પોતાને હો ને બાયડી हो ना बीजा के हाँ भाई जावा मुक्के। तो सगरे धन सो लागे, सभी धन के पीछे लगे। किसी की अंदर से भावना नहीं, ममता नहीं है, क्योंकि पेट नहीं हो ना तो किसी से भेंट नहीं हो, मुख्य कारण पेट के पीछे मरता हो। कुतरा भी जो, कुतरा भी पेट के लिए मरता, दर रोज तुम्हें रोटी खवड़ाओ तो आकर के बैठता है, वो भी पेट के लिए है। तुम्हारे यहाँ दिन भर पहरा पे है, कोक आवे तो भू भू कर से भूस से, केम वो पेट के लिए, बीजी काई नहीं से। यानी ममता शू से, यानी एक भावना से कि हमें यानी ड्यूटी पर है तो हमें काई रोटली आपसे खावा नहीं आप तो मानस जो से ना ये स्वार्थी से, परमार्थी नहीं। रामायण में लेख से चोखो, सुर नर मुनि सबके यही रीति, अस्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ये हमें बधाया गया। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने संत महात्मा, सबके यही रीति, सब मतलब बड़ा संसार आ गया, चाहे हमें कुतरा हो, चाहे ढोर हो, चाहे दीकरी दीकरा हो, कोई भी हो, सबके सभी को समेट दिया, कोई बचा नहीं थी। यही रीति स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए सब प्रेम करता। कोई कहीं जातो हो ना, कहीं भाव दिखा रहा तो काई न काई बात अंदर में हो गया। मानस विधा ने गांडो समझे, अपने पोते तो होशियार हो। मंदिर में जाता हो ना, बे अगरबत्ती जलावे, हड़काई देवे के हमारे दीकरो थई जाए, हमारे दीकरी थई जाए, मोटी मांगनी करतो, समझे कि हमारे देवता तो बे में इतना आप ही देवे। यानी आई कीमत नहीं समझे कि हमें बे आपी, बे अगरबत्ती आपी, अब मांगनी कितनी करी, ये तो नहीं से। बोते समझे कि हमें सतर्क से, बुद्धिमान सो है। तो ये विषय जो है बहुत गहन है, सभी स्वार्थ के पीछे मरता। परमार्थ तो को खोए जो है, परमार्थ को खोए नहीं तो बद्दा स्वार्थी से।
ચાહે ગમે કાંઈ હો, હા. પશુ પક્ષી મનુષ્ય હા બધાય ઢોર જો કાંઈ ને કાંઈ ખવડાવતો ને આગળ से જોવે તો આવાજ દેવે, હા હે જો નહીં ખવડાવે याने आवाज नहीं देता, નહીં तो याने भी तो स्वार्थ છે। હા સ્વાર્થ તમે આયા અમે કાંઈ છે તો આપનો કાંઈ ને કાંઈ संस्कार છે, और यहाँ में संस्कार के बीच में जो अपना स्वार्थ जुड़ा हो, હા है हमें इतना सोहनी मारतो हो तो हमारो तो कि यहाँ चोखो रहे तो 10 मानस आके बैठते हैं, 10 ने गम से तो हमारी व्यवस्था था। हमारी खेती से भक्त सही भक्त नहीं होगा, क्या करें? नहीं आएगा तो क्या करेंगे, खेती सूख जाएगा तो क्या खाएंगे, કાંઈ નહીં हैं? तो बधा सुर नर मुनि सब के ही रीति स्वार्थ लागे करें, सब स्वार्थ के लिए अपने मतलब के लिए प्रेम करते हैं, और जब मतलब निकल गया तो पहचान पहचान हमारी तो हमारी मिटी गई। कितना તમે कमाओ, હા गमे रीते कमाता हो, હા साचो चाहे खोटो चाहे मेहनत करके, कितना मोटा महल बनाओ, बना के रखो, 1 मिनट में श्वास निकल जाए बद्दा बाहर काढ़ी मुकता, હા काढ़वा वाला काई 1 रुपया लगाना नहीं, હા એ कि हमें ઘરમાં काई नहीं लगाया से, तुम्हारा लगा तुम्हारे लिए जगह नहीं सी, या में शू निकल गया से, स्वार्थ निकल गया, હા कि आत्मा निकल गई तो अब स्वार्थ नहीं सदे, यानी हमारे काई कर से नहीं काढ़ो, बीजा काई निकलो नहीं, तत्काल आत्मा निकलने के बाद कोई गंध नहीं है, नहीं है। गंध तो नहीं है, केवल हलचल नहीं हो रही, हमारी भावना है कि हमें अब कुछ है नहीं, हमारा मतलब कहीं आने वाला नहीं, इसलिए इसको बाहर काट देते। पोते तमे कितना मोटा महल बनाया, यहाँ में 2 गज 2-5 हाथ जमीन તમારે लिए नहीं सी हमें, यानी बाहर काट देवानो, तो બધા स्वार्थी से, हैं? स्वार्थी से ना, तो स्वार्थ के पीछे सब चल रहा दुनिया। यदि स्वार्थ नहीं हो तो कोई दीकरी दीकर ने पाले नहीं, यानी भावना हो आगर दिखे है कि याने मोटो थाय तो कल को 1 गिलास पानी आपसे काई ने काई पे गाली भले काढ़े लेकिन रोटली तो आपसे आपसे, तो ये तो स्वार्थ बस पालता दीकरी दीकरी। माँ बाप को कुछ होता तो दीकरो होवे कि ये हमारो थाय, करे नहीं तो बीजा पर वही जावे, ये स्वार्थ से लगा से। पूरे संसार का विषय है, रामायण का विषय जुदा है। रामायण में एक त्याग वृत्ति है, त्याग भावना, त्याग वृत्ति। त्याग रामायण का कर्म जो है उसमें वो सबके वश का नहीं, रामायण को पढ़ना सबके वश का नहीं, पढ़ तो लेगा लेकिन समझ नहीं सकता, समझ देगा तो छोड़ देगा, दूसरे को बता नहीं सकता। हमें इसमें दीदो एरंड कांड में नारद जी के प्रसंग में वो प्रश्न किया है कि लोगों को दांत खट्टे हो जाए, क्या यहाँ तक का वंशी सम कहती है ही प्रवीणा, वंशी के समान स्त्री को कहते हैं। 75% स्त्री कथा में होती है, अब वंशी माने होती वो जैसे मछली मारने को कटिया होती है, आगड़ पाचड़ फाल होता, आगड़ मछली खाती है लोभ दे करके चारा, तो हमें फार अंदर जाओ, पाचड़ खींचे तो ऊपर लग जाता। तो स्त्री रूपी वंशी में जो फंस जाता वो फिर निकल नहीं पाता। उसमें क्या क्या निकाल दे, बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बुद्धि बुद्धि बोल बल शील और सत्य, ये चारों मछलियां से वंशी सब कहती है ही प्रवीणा। प्रवीण लोग हर कोई नहीं, जो कुशल है जानकार है विद्वान है, ये लोग कहते हैं स्त्री वंशी के समान है। स्त्री में जो फंस जाता है, स्त्री के चक्कर में भेद वाली बुद्धि ये स्त्री है, तो क्या करती है, बुद्धि को छीड़ कर देती है, आगे बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। बल छीड़ हो जाएगा, काल को तुम्हारी लगन हो, थोड़ा दिन रहने के बाद केण में दुखावा चालू थी जाए। शील जब छीड़ हो जाएगा, शक्ति ओछी हो जाएगी, दुखावा होगा तो आवाज कड़क थी जाएगी, इसलिए शील वही गया। ये शिक्षा देवे है, तमे यहाँ व्यवहार करशो तो सुख आवे, और तमे नहीं तो हमें बैठा है हमें सुख आवते, बे दीक दीक सुख आवे,
એ પાઠ પડાવે તો શીલ તો ગયા, अब तो कमावाना से बीजो शू करे। तो बुद्धि बल शील और सत्य से डिग जाएगा। तमे साचो बोलशे तो शू खावशे। बंसी सम कहती यही प्रवीणा। अब तमे कथा में यदि यह विषय लेवे नारद जी का प्रसंग तो बायडी 75% होगी कथा मुख करके बही जाएंगी। तो कथा तो उलार थी जाए, कोई होवे नहीं तो शू कैसे भक्ता ने आवक तो मारी जावे। इसलिए सत्य को कोई ओपन नहीं करता, समझ करके भी नहीं बोलता। समझिए, हकीकत यह है कि आप जब कहीं फंस जाते हैं तो आपकी वृत्ति बदल जाती है। सही बात। जब फंस जाते हैं तो आपके अंदर तरंग उठती है, भावनाएं दूसरी जागृत हो जाती है कि हम कैसे निकलें और क्या करें। और जब तक स्वतंत्र हैं तब तक कुछ भी नहीं। क्यों कि आप जानते हैं जिसके संतान नहीं होती है वो संतान सुख का अनुभव कैसे कर सकता। जो मोह में फंसा नहीं है वो मोह के लक्षण को क्या समझे। जिसको बेवाय नहीं फटी है पग में उसे क्या मालूम बेवाय फटी तो यानी दुख कितना दुखावट है, केम दुखावट है जाने फटी यानी खबर से। जो मोह में फंसा से यानी खबर से कि के रेते हमें दसना पोषण करवानो से, कहाँ से ले आवानो से। चाहे भागवत उपाड़ के देखो या रामायण उपाड़ के देखो। भागवत में अजामिल कितना के फंसने के बाद में दुख उठाया। एक सदाचारी गौर होते हुए अदा होते हुए एक वेश्या के संग में धंधा करने वाली हल्की वाइडी के चक्कर में फंसा। कितना रूरू पक्षी मारता, रूरू है सियाल ढोर मार मार के ले आता। अब सदाचार जो कर्म तमे करा छे ये तमारो भेगा तो रहसे, ये तमारे रक्षक बनसे। तमे भूल जाओ कि हमारो काम नहीं करे। अजामिल के साथ यही हुआ। घने समय होने के बाद में अजामिल श्रीमद् भागवत में लेके एक दिन जा रहा था तो संतों की टोली जा रही, ये छीना चोरी करने लगी। कोई हो तो लोगड़ो उतार लेगा, पोषण नहीं करे तो हूँ थाय 10 दीकरी दीकरा जानवर मारे छीन ले। बदा बता दीधो कि यहाँ से यहाँ जाओ। यहाँ बदा गया तो यानी वो हती वायडी हती, यानी कही तमे बापू बही जाओ यहाँ से नहीं तो बदा छीन लेवे हमारा मानस तो यम से। कहे नहीं हमारे काई एमने शू छीन लेवे, हमें अजामिल भक्त ત્યાં જવાનો છે। પછી કે ભક્ત કહે તો આપણે શું કરવાનું हो। बायडी बही गई जंगल में तो रूरू वहाँ जानवर उपाड़ के ले आ रहा। તમારે એને वहाँ बीजो लुगड़ा उगड़ा फेरवाए कहे मूकी देव बापू आया से बदा तमे भक्त कहे भक्त बन के जावानो। संत दर्श जीव पातक रहे, संत के दर्शन से पाप टल जाता है, उसके अंदर पाप ओछा हुआ। इसलिए अजामिल को संत के भेष दर्शन कराने के लिए उसको परिवर्तन करा रही है कि नहीं तमे संत बन करके जाओ इन्हें भाव से यानी तमे चलो। बोले तो शू खाव से करे। बोले नहीं, बोले कछु लाया से बापू बधा। बोले बधा तमे लावे, तमे शांति रखो, तमे भक्त बन के जावानो से। आज दिखाओ कि हमें मोटो भक्त से। अजामिल ने कहा ये तो बात सत्य है, पहले हमें भक्ति तो होती हमारे अंदर लेकिन आज तो हम यहाँ में पड़ गया, तमे चक्कर में फंसा ली दो। आज कहे कि भक्त बन जाओ। यदि भक्त बनवाना था तो केम जाल में फंसाया हमें। जाल में फंसा तो अभी केम काढ़े हमें, ये तो अधर में फंस गया। बोले चलो। पछी अजामिल आया बधु हरखो करके, बापू ने बदा करी सम्मान करी। पछी कहे हमें एक चीज तमारे से जो है। बोले शू जो है। बोले तमे आपो बीजो काई नहीं। बोले हमें आपी दो तो हारो से, हमारे लेवानो से देवानो नहीं काई, हमारे पास काई से नहीं, हमें तो लुटेरा छो, तमे साचो कहूँ। बोले अरे अजामिल भगत तमे तो मोटो भक्त छो। बोले नहीं हमें लुटेरो से, हमारो तो पोताने पेट केम भरे, 10 दीकरी दीकरा आने साचवानो से। बोले शू राखवानो से। बोला तमे प्रसन्न छो, तमे एक प्रसाद आपी जाओ। बोले बापू मोटो प्रसाद आपो जो हमारे कछु तो हले। बोले मोटो तो आपू या से तमारो कल्याण थई जाएगा, एक ही तमारे करवानो छे। जे दिन तमारो दीकरो थाय तमे याने नाम नारायण राखवानो, ये प्रसाद छे। बोले काय ने दीकरो थाय तो राखी देवे, आमे हूँ छे राखवानो। पछी कछु समय के बाद याने दीकरो हुओ याने नारायण नाम रखी। कछु तमे हलतो रहो। एक दिन काल ने घेरी लीधो, यमनो पहरो थाय,
પછી યાને જવાને જો હે તબલ થાય, બધા परेशान करवा चालू कर दीदो कि चलो ले जावाने। जल्दी से किसी की आत्मा नहीं निकलती है शरीर को, अपना घर कोई मुकता नहीं, गमे का ही हो, नानो हो चाहे मोटो, घर मुकवा में मोटी बात से जल्दी छूटे नहीं। एक सुई गोतवा में खो जा ना तो कितनों अंदर से दुखी था, दुख होता 10 बार मन जाता। इतना मोटा मकान मुकाय कितना दुख થાય। પછી અમે એમ કરી પછી યાને દીકરાને નામ રખા था नारायण, याने तेरा याने बहु भाव होता नारायण दीकरा के नारायण 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 चिल्लाता, शोर मचाया। પછી नारायण के दूत आकर के याने पास जमपास से मुक्त करा दी थो, चलिया से दुख से मुक्त हुआ। तो याने अंदर अंदर से जागृति हुई। अरे नाम पुकारवाना दीकरा ने हम था यामे कितनो मोटो से, यामे कितनी नामनी मोटाई से नारायण ने जपे तो हूँ था, हमें तो खोटा फसाई गया से हमें दुखी था। इसीलिए सदाचारी ब्राह्मण सब कुछ को मुक्त करके भगवान में लग गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब आप समझो, संत के दर्शन से पाप कटते हैं, लेकिन संत के प्रति जब आस्था हो, भावना हो अंदर से, जब तक भाव नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सच्चे भाव हो तो अवश्य ही कल्याण होता है। इसलिए ये सब कर्म है, कोई किसी का है नहीं, ये ममता का बंधन है। और ये चारों जो लुटेरे हैं ना, ये जबरन लूटते हैं। अपने को पता नहीं लगेगा तुम्हारी कितनी उम्र हो गई, पोता ने कहीं खबर नहीं होगी। कहीं लेख पड़ा हो ना जन्म न तो खबर होगा इतनी उम्र થઈ गई। दिन और रात एक चक्र चलता है, ऐसे चलता रहता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाता, खबर नहीं पड़ा कितना दिन हो गया है। हाँ, इसलिए कोई चाहता भी नहीं है, इतना समय गुजर गया पता भी नहीं लगता है। और जरा अवस्था को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जबरन आ जाती है। सफेद धोरा થઈ જાય, आँखની रोची मारी जाए, कान ओछो सवड़वा, दांत बही जातो समय से, પછી राम कहे तो लाम निकले, પછી શું થાય। इसलिए चौथेपन में भजन भी नहीं था, चौथेपन में रोकड़ो नहीं कमा सके, चौथेपन में काई विशेष व्यवहार नहीं था। चौथोपन गड़पन तो बहुत मोटी बात से संभालवानो। नानो दीकरा तो बधा संभाल लेवे, ગડપણ સંભાળવાનું, लेकिन गोड़ो थाय ना એને કોઈ નહીં। મનની ભાવના, દૃષ્ટિ, લોક, લજ્જા બધું છે કે રીતે જ આવે। મન તો કહે આમ હલો, શરીર હલતો નહીં, પછી શું થાય? ઘર્ષણ થાય। આ નાનો તો બાપુજી બાત તો સંભાળ લેતા, નાનો દીકરાને વાંધો નહીં પડે, लेकिन મોટાને तो बहुत मोटी बात है। इसलिए कोई किसी का है नहीं, जो सोच समझ कर नहीं चलता वो खड्डे में जाता है। इसलिए शू करना चाहिए, आगे भविष्य जोना चाहिए। जितनी तुम्हारी रफ्तार हो इतनी आगे दृष्टि पड़े, जितनी गाड़ी तेज हाँकता हो ना इतनो आगे तुम्हारे जोनो पड़े। रास्ता क्लियर हो तो बराबर से, तमे पग के नीचे जोता हो, आगे हाँकता हो तो भटकावा नहीं। भटकाव से तो होता है तुम्हारो हाथ पांव भांग से। इसलिए अपनी स्पीड जितनी हो, तेजी होगी उतनी आगे तक रास्ता जोनो पड़े क्लियर। इसलिए साचो तो ये अपने भविष्य को जो हो हमें एम करें तो आगड़ केम थाय। जैसे साइकिल गाड़ी चलावे आगड़ जोता, ऐसे भविष्य को आगे जोना चाहिए। आज को तो मुकी दो, आज तो वही जावानो से, आगड़ केम थाय। आगड़ दृष्टि रहे तो कभी भटकावे नहीं। ભવિષ્યનો વિચાર, हाँ, भविष्य को विचार करके પછી આગળ निर्णय करे तो तुम्हारे लिए सारो रहશે। जय श्री राम। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। બાપુ મજા કરાવી દીધો।